Morning to one and all, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the video of this chapter, chapter 8, the Silk Road, and the video will start the 10th video of this chapter from your book Hornbill. So students, previously or in our previous videos, we have read that the author sat alone in the cafe and over a glass of tea he thought about his future plan. Author जो है एक cafe में बैठे थे and he thought about his future plans. He what was going there and all, like कि वो क्या करेगा, because he was alone for his Kailash, or you can say that Mount Kailash Kora journey. So now he never thought that he would go alone on such a difficult pilgrimage, because Mount Kailash Yatra is quite difficult. So the writer knows that the parts of route were liable to like blockage of snow, and he doesn't know whether the snow has cleared. अब writer जो है वो अकेला था, he doesn't know कि snow जो है वो कहाँ पर clear होगी या कहाँ पर blockages होंगे. So nobody in the town of Darsan at the same time. The second situation is that nobody in the town of Darsan who knew him or he knew him perfectly. कोई भी ऐसा नहीं था enough English to understand or like answer his question. So he is worried about that how he'll continue that difficult pilgrimage. You can say that यात्रा जो है वो कैसे इतनी difficult pilgrimage यात्रा जो है उसको आगे continue कर पाएगा. सो इस तरह जो है ऑथर निक मिडल्टन वो सोचने लगते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जस्ट टुडे विल रीड दैट फ्रॉम योर until that is I met Norbu. The cafe was small and dark, cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. So until that is, अब वो इतना सब कुछ क्वेश्चन ही सोच रहा था कि अगर उसे बेसिक क्वेश्चन भी किसी से पूछना हो इंग्लिश में तो देर इज़ नो बडी इन दैट विलेज, डार्सन विलेज, टाउन विलेज, जिससे वो ये सब कुछ पूछ सके. सो ऐसा सब कुछ कोई सोच ही रहा था until I met नोरबू, जब तक वो नोरबू से नहीं मिला था. हु इज़ नोरबू विल रीड in our next paragraphs. So the cafe was small and dark and cavernous. जो कैफे है जिसमें वो बैठ के चाय पीते पीते ये सब कुछ सोच रहा था, उस वक्त जो कैफे है वो डार्क था, उसका स्मॉल रूम था. एंड द कैफे लुक लाइक दैट इट वाज अ केवर्नस. केवर्नस यह मीन्स द कैफे इज लाइक अ केव, एक गुफा की तरह था. सो योर अगर आप वर्ड को यू कैन जस्ट divide that word into two parts, then you'll understand the meaning. The cafe है वो cave की तरह था, with a long metal stove that ran down the middle, और जहाँ पर बड़ा सा एक long सा stove रखा हुआ था जो middle में था. and the wall and ceilings were wrapped, और जो walls और ceiling है वो सब कुछ रेत means your the walls or ceilings जो है they were covered with different layers of plastic sheets. You can see here that it is written over here. So some like plastic sheets, different color plastic sheets जिससे वो कवर हुआ हुआ था. So those plastic layer of sheets are like red. Of sheets of multicolor, move on to the next one. Of sheets of multicolor plastic of striped variety, broad blue, red and white, that is made into stout. और सभी अलग अलग कलर की लाइक ब्लू, रेड, वाइट, इस तरह के कलर्स की वो जो स्ट्रिप्स हैं वो वहाँ पर उस कैफे पे लगी हुई थी. एंड दो स्ट्रिप्स वर लाइक स्टाउट. स्टाउट हियर मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिक. वो स्ट्रिप्स इतनी strong, stout is written over here. So those strips were like very strong and thick. And voluminous शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना. और बहुत ही वॉल्यूम मतलब बहुत ही थिक मटेरियल की बनी हुई थी. और इस तरीके की जो मटेरियल होता है, इस प्लास्टिक बैग वाला मटेरियल, इस तरीके के मटेरियल के शॉपिंग बैग्स भी चाइना में सेल किए जाते हैं. इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप. तो एशिया और यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये सब कुछ सेल किया जाता है. एज मच एज प्लास्टिक must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today. और अगर हम बात करें कि अब, बिकॉज इन प्रीवियस टाइम सिल्क रोड से मेजर एक्सपोर्ट जो है वो कश्मीर से सिल्क ले जाया जाता था अलग अलग जगह, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम चाइना का प्लास्टिक इतना फेमस है कि ऑथर यहाँ मेंशन करना चाहता है कि चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल, चाइना की जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट जो दूसरी कंट्रीज लाइक यूरोप एंड एशिया में जाती है वो है प्लास्टिक.
और उसमें से एक रूट जो अपनाया जाता है उस प्लास्टिक को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, दैट रूट इज़ लाइक सिल्क रोड टुडे. So the cafe, move on to the next paragraph here. So the cafe had a single window beside which I do taken up position so that I could see the pages of my notebook. जो कैफे में एक सिंगल विंडो थी जहाँ पे ऑथर बैठा हुआ था, वहीं पर उसने आई डू टेकन अप पोजिशन, वहीं पर उसने जगह ले ली थी. सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, ताकि वो अपनी नोटबुक के पेजेस को देख सके. आई डू ऑल्सो ब्रॉट नॉवल विथ मी टू हेल्प टू पास द टाइम. और उसके साथ साथ वो कुछ लिखने के लिए डायरी सॉर्ट ऑफ लाया था, एंड साथ साथ एक नॉवल भी लाया था, सो दैट अगर कभी वो ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ उसे लगे कि नॉवल रीड करना इज़ लाइक मच बेटर ऑप्शन, तो वो रीड कर सकें. नोरबू सॉ माई बुक. अब वो इतना सब कुछ कर रहा था, लाइक कैफ़े में बैठ के चाय पी रहा था एंड ऑल, एंड वो इतना सब कुछ सोच रहा था कि मैं अकेले कैसे रहूँगा, किससे बात करूँगा, और प्लास्टिक बैग्स और इनके बारे में खिड़की के बाहर देखता हुआ. एट दैट टाइम ऑथर ने क्या देखा? नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर. सो नोरबू जो है, नोरबू ने क्या करा? नोरबू सॉ माई बुक. नोरबू ने उसकी बुक देखी. व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर. जब वो उसके पास आया तो उसने अपने इशारों से, जेस्चर्स से वहाँ पूछा, इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट मी एट माई rickety table. So क्या वो उसकी rickety here means the table which is not in good condition, or you can say that the table which is like quite broken from so many different places. So here rickety is like broken or in bad condition. So कोई बैड कंडीशन में वो जो टेबल थी. और ड्यू टू दैट यू इंग्लिश, तो नोटबुक से क्या पूछता है? यू इंग्लिश ही इंक्वायर. तो उसने इंक्वायरी करते हुए वे में पूछा कि तुम क्या एक इंग्लिश मैन हो? आफ्टर ही डू ऑर्डर टी. और उससे पहले उसने क्या करा? टी ऑर्डर कर दी थी. आई टोल्ड हिम आई वॉज. और उसने उसे बताया, यानी हमारी स्टोरी के जो राइटर हैं उन्होंने बताया, येस आई एम अ इंग्लिश मैन. एंड वी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्जेशन. और उसके बाद उनकी कॉन्वर्जेशन या बातचीत स्टार्ट हुई. नेक्स्ट, आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड शीटर. तो ऑथर यहाँ कहना चाह रहे हैं दैट आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स. तो उसे लग रहा है कि वो कस्बे के, या जो आप कहेंगे कुछ उन पार्ट से वो नहीं. आई डेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, ही वॉज वियरिंग अ विंड शीटर. तो ऑथर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वो उसको उन पार्ट से नहीं लग रहा था, बिकॉज उसने क्या पहना हुआ था? एक विंड शीटर पहना हुआ था. विंड शीटर इज अ काइंड ऑफ जैकेट और थिंग विच इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटीरियल लाइक प्लास्टिक एंड मेटल रिम स्पेक्टिकल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल. अब वो यहाँ पे ऑथर हमें नोरबू का जो किस तरह वो ड्रेस्ड अप है, ये डिस्क्रिप्शन हमें डिस्क्राइब कर रहा है. सो आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स. वो उन पार्ट से नहीं है, बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड शीटर. उसने एक विंड शीटर पहना था, और जो टिपिकल तिब्बतन लोग थे उन्होंने शीप कोट जैकेट्स पहने हुए थे. एंड मेटल रिम स्पेक्टिकल्स ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल. और मेटल रिम वाले या मेटल फ्रेम वाले स्पेक्टिकल्स उसने पहने हुए थे. सो ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी. एंड उस नॉर्बू ने उन्हें बताया था ऑथर को कि वो एक तिब्बतन है, बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज. लेकिन वो बीजिंग में चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में वर्क करता है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर. और जहाँ पे वो वर्क करता है, वेयर ही लाइक वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ लाइक एथनिक लिटरेचर, और यू कैन से दैट जातीय और सम रेशियल लिटरेचर पे वो वर्क कर रहा था. आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क. और ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके के किसी फील्ड वर्क में है, बट ऐसा नहीं था. सो हियर द ऑथर इज लाइक एक्सप्लेनिंग दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स नोरबू इज वियरिंग, एंड the writer thought so because that he was the newcomer was wearing western style dress and wind cheater and metal rim spectacles. So that उसने क्या सोचा कि अरे इसने मेटल रिम के स्पेक्टिकल्स पहने हैं तो मे बी ये तिब्बतन नहीं होगा. जब उसने उसे बताया कि वो चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कुछ वर्षों से जो है, आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट एथनिक लिटरेचर यानी शोक पत्र लिख रहा है,
और उसने उसे ये बताया है दैट आई वॉज अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, कि जैसे वो कोई उस अकेडमी के लिए, यानी चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोशल साइंसेज है उस अकेडमी के लिए कुछ वर्क करने यहाँ पर आया होगा। येस एंड नो ही सेड आई हैव कम टू डू कोरा। और उसके बाद नोरबू ने जैसे ही ये कहा कि नहीं और हाँ दोनों ही बातें कही और ये कहा कि मैं यहाँ कोरा यानी माउंट कैलाश की यात्रा कंप्लीट करने आया हूँ, माई हार्ट जम्प्ड। तो ऑथर क्या कहता है कि मेरा दिल जो है वो खुशी से झूम उठा, या फिर मैं जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे क्या लग रहा था, अब तक ऑथर को ये लगता आ रहा था हमारे चैप्टर में कि उसके पास कोई कंपनी नहीं है। आफ्टर जब जैतन वहाँ से मूव ऑन कर गया तो उसके बाद उसे लग रहा था दैट ही इज़ अलोन हियर एंड हाउ ही विल कंटिन्यू हिज जर्नी। बट अब उसे क्या लगने लग गया था कि ओके ही हैड समथिंग टू डू, अब उसके पास कुछ तो है करने के लिए, और वो क्या है कि उसे क्या मिल गया है, नोरबू। और नोरबू कौन है, नोरबू इज़ अ मैन हु इज़ लाइक जो कि एक क्या कर रहा है, एथनिक लिटरेचर पे वर्क कर रहा है। और जैसे उसने ये कहा कि आई एम हियर फॉर दैट कोरा यात्रा एंड माई हार्ट जम्प्ड, और ऑथर जो है वो खुश हुआ। नोरबू हैड बीन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, और नोरबू जो है वो कैलाश कोरा के ऊपर कुछ अकेडमिक पेपर्स, यू कैन से दैट, तो कैलाश यात्रा के बारे में कुछ एकेडमिक पेपर्स या कैलाश यात्रा के बारे में लिख रहा था, जो कि about the Kailash Kora and its importance in various work of Buddhist literature for many years। और कैलाश यात्रा के बारे में ये भी लिख रहा था कि बौद्ध लिटरेचर में इसके महत्व पर बहुत वर्षों से जो है वो शोक पत्र लिखता आ रहा है। He told me but he had never actually done it itself। उसने ऐसा बताया बट उसने ऐसा नहीं प्रॉपरली बोला था। सो हियर स्टूडेंट्स द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट उसको नोरबू के मिलने से कितनी खुशी मिल रही थी। So students will continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe and thank you all.